Good morning, dear students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about common property resources, and currently, environment resources. The chapter is going on. Okay. So today, in this video, we'll discuss about the new topic, that is India's stand on the environmental issues. We have discussed a lot of environmental related issues in this particular chapter, like what are the importance of the environments, है ना, what are global properties and global commons, many other topics we have earlier discussed. If you go through my early videos, you will get understand all these things. Okay. So today here we are going to discuss that how the India stand for the environmental issues. As I earlier told that the northern and the southern parts of the located countries are blaming to each other that they are more responsible, just like southern parts countries are especially saying that the northern parts countries has already make industrialization, so they are more responsible for the environmental degradations, so they must have a more responsibility as compared to that. And for that sake, a meeting was already done in Rio de Janeiro. Okay. Here we will see that how the India has deal with the issues of environmental issues. Okay. So see, in India signed the rectification 1997 Kyoto Protocols, August 2002. India, China and the developing countries were exempt from requirements of the Kyoto Protocols because their contributions to the emissions of greenhouse gases during the industrialization period वॉज नॉट सिग्निफिकेंट्स. ठीक है. तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इंडिया है उसने किया है एक रेक्टिफिकेशन साइन किया था. रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है इस चीज़ की पुष्टि की थी, इस चीज़ को वेरीफाई किया था कि इंडिया, और जिसको एक रेक्टिफिकेशन साइन किया था जो कि कोयोटो प्रोटोकॉल, जो कि अगस्त 2002 में साइन किया गया, जिसमें इंडिया और चाइना, एट दैट टाइम द चाइना वॉज अ डेवलपिंग कंट्री, वॉज एग्जम्प्ट देयर सेल्फ, और उन्होंने अपने आप को क्या किया, एग्जाम किया है इस चीज़ें कि जो इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है. देखिए मोस्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन के केसेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्री लगने की वजह से इमिशंस का मतलब निकलना होता है, एक्सट्रक्शंस ऑफ द थिंग्स. तो सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में और कंट्रीज़ ने किया है. देखो दैट इज़ बिलीव्ड टू बी कॉजिंग द इंडियाज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ये इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से मतलब है. ठीक है. वॉज नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. हाउएवर क्रिटिक्स ऑफ द कोयोटो प्रोटोकॉल्स पॉइंट दैट sooner or later both India and China along with other developing country will be amongst the leading contributors of the greenhouse gases emissions. ठीक है. देखिए इंडिया ने इस बात का रेक्टिफिकेशन दे दिया इस चीज़ को कोयोटो में साइन करके कि इंडिया और चाइना लाइक डेवलपिंग कंट्री इज़ नॉट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ environmental pollutions, but some of the people those who are criticizing this protocols, they were simply saying that both India and China along with some other developing countries will make a lot of contributions for the greenhouse effect or emissions later on. ठीक है. At G8 meetings in June 2005, India point out that the per capita emissions rates of the developing countries are a tiny fractions of those of the developed country. देखिए जो G18 की मीटिंग हुई थी, G8 की जो बेसिकली मीटिंग हुई थी उस जो 2005 जून में हुई थी, उसमें इंडिया ने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, उनका जो इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है, यानी जहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेस का क्रिएशंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़. यानी किसका ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का बहुत, डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री. देखिए ये लाइन लिखी ना, इमिशन रेट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री आर अ टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ दोज इन अ डेवलप्ड वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो इमिशन रेट है ग्लोबलाइजेशन में, यानी जो इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है. फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन बट differentiate responsibility, India is one of the view that the major responsibility curbing emissions rest
विद द डेवलप्ड कंट्री। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था, कि वो साउथ और नॉर्थ की कंट्रीज़ ये बोल रही थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, अपने आप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया, तो उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, तो दे मस्ट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंडिया ने भी इसी मॉडल को फॉलो किया और इस व्यू पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशंस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री, विच वॉज अक्यूमुलेटेड एमिनेशंस ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड्स। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल नेगोशिएशन पोजीशन relies heavy on principle of the historical responsibility as enshrined in UNFCCC. This acknowledges that developed countries are responsible for most historical and current greenhouse gases emission and emphasize that economic and social development are the first and overriding priorities of developing country parties। ठीक है, तो देखिए इंडियाज़ इंटरनेशनल नेगोशिएशन, जो इंडिया का इंटरनेशनल नेगोशिएशन है, पोजीशन रैलीज हैवीली ऑन प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रैलीज़ करता है, किस प्रिंसिपल पे ज़्यादा मतलब उसको फॉलोअप करता है, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल को। ठीक है, जो कि इंश्रिंक किया था UNFCCC ने। ठीक है, दिस एक्नॉलेजमेंट, उसके मतलब एक्नॉलेजमेंट में या उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के एक्नॉलेजमेंट में डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट हिस्टोरिकल एंड करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। यानी उसके एग्जांपल्स में ये चीज़ें और एक्नॉलेज में ये क्लियरली दिखाया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, फॉर द मोस्ट हिस्टोरिकल। ठीक है, एंड एम्फसिस दैट, और इस चीज़ पे भी एम्फसिस करता है, क्या एम्फसिस करता है, जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो कि श्रिंक करके, छोटा करके किसने